तो पेरेंट्स की बहुत सारी कंप्लेन है कि वो कौन सी गेम पबजी, फिर नया नया कोई भी गेम का एडिक्शन हो जाता है, टेलीविजन एडिक्शंस है, गेम्स एडिक्शंस, बाहर खेलने जाने का एडिक्शंस, ग्रुप चैट एडिक्शन, व्हाट्सएप एडिक्शन, फेसबुक इंस्टाग्राम एडिक्शंस, राइट। तो कहीं ना कहीं या तो वो लोग मिसगाइडेड है या तो मिसडिरेक्टेड है। इसका रीजन क्या है कि उनका खुद का जो इंटरनल एनर्जीज है वो बैलेंस नहीं है। अच्छा, हाँ, एनर्जी बैलेंस अगर होता है उनका और एक ही दिशा में अगर काम करता है तो वो लोग जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। Atma Namaste viewer. I, Insha Tinwala, I am an educator, I am a counselor. I welcome you all to Quest Continuum, Recreate Your Energies. Today, we are going to solve our all queries regarding the energies. जो energies है वो क्या है, कैसी है, किस प्रकार की है, whether they are positive, whether they are negative, whether they are healing, और किस किस एरियाज में हमें ये एनर्जीज की वजह से बेनिफिट या नुकसान हो सकता है. So all these queries run in my mind and I think they are running in your mind as well, right? So today, to solve all our queries, we are going to have with us Dr. Rushik Thakkar with us. Dr. Thakkar has done doctorate in alternative medicines. He is a counselor as well. He is a healing practitioner. He has done a lot of healings in lot many fields. Okay, he has done research in these energies, how these energies help us to cure us, not only regarding the ailments, but your relationships, finances, the areas of agriculture, and a lot more. So I think I would not be the correct person to guide you about the same. So why not welcome him and let us know further from him. Atma Namaste Rushik sir. Thank you for being with us. So today we are talking about energies. So I hope you will enlighten us about these energies, what these energies are. Atma Namaste Inshiabin and everyone. Thank you for having me here first of all. And yes, I'm sure कि आज जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के कोई ना कोई पार्ट में तो काम आएगा. And I will try my best to give you the best understanding on energy. Thank you so much, sir. We all know about energies. जैसे हमने energies के बारे में सुना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता है energies के बारे में. So let us know from Dr. Rushik Thakkar. सर, ये energies जो होती है, क्या वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, हीलिंग एनर्जीज होती है? What are the different kind of energies? This is really good question, Inshabin, and thank you for asking such a question. First you must understand कि एनर्जी एनर्जी ही होता है. नहीं तो वो पॉजिटिव होता है, नहीं तो वो नेगेटिव होता है, नहीं तो वो उपचार का ऊर्जा होता है, या तो फिर नहीं तो वो प्यार का ऊर्जा होता है. ऊर्जा ऊर्जा ही है, वो न्यूट्रल है. दैट इज वी बाय आवर थिंकिंग thought process convert the energy into positive or negative. Otherwise ऊर्जा जो है वो न्यूट्रल है. It is in its pure form. Right? That is we, when we think, when we feel something, we convert that energy into positive, negative, higher, lower, good, bad, जैसे भी हम फिर आगे उसको एलोबरेट करें, but ऊर्जा ऊर्जा ही होता है. Okay, so that's a very good thing, viewers, कि हमें आज पता चला कि इट इज़ एंटायरली अपॉन आवर थॉट प्रोसेस कि हम उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं या तो फिर नेगेटिव कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके डॉक्टर रुशिक ठक्कर, आपने जैसे बताया कि ऊर्जा पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे थॉट्स के हिसाब से ही होती है. सो हाउ डू वी रिकग्नाइज कि हमारे आगे पीछे ये एनर्जीज है, हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़? ओके, तो आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी को मिलते हो तो बहुत खुश हो जाते हो. उसको मिलने से पहले भी आप बहुत सारे प्लानिंग्स करते हो और आपने एक टाइम रखा है कि भाई ये बंदा आ रहा है, ये मेरा कोई फ्रेंड या कोई मित्र या रिलेटिव आ रहा है, तो हम आधे घंटे के लिए मिल रहे हैं या 1 घंटे के लिए मिल रहे हैं.
बट जैसे ही हम बातें करना चालू करते मिलते तो फर्स्ट उसको देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं Okay. और 2 घंटे 4 घंटे बातों में कहाँ चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता है. True. What does it mean? Our body sense good vibration unconsciously from that person's aura. Alright. So that is how we recognize, our body recognize automatically whether the energy is good or bad. Okay. This happens with the good energy, with good person. Okay. How can we recognize negative energies, bad energies? When we meet someone, Okay. तो हमें ऐसा लगता है कि उसको मिलने के बाद आधे घंटे के लिए मिलना था पर उससे पहले ही हमें ऐसा लगता है कि अब ये जाए तो अच्छा है. True. राइट. बहुत हो गया जी. इससे मिलके, बहुत हो गया, ये कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा. कई गेस्ट भी ऐसे होते हैं कि मम्मी पापा को पसंद होते हैं पर हमें ऐसा होता है कि वो अब चले जाए तो अच्छा है, बहुत जल्दी वापस ना आए. और उनको मिलने के बाद हमें ड्रेन, एग्जॉस्टेड, डल, डीमोटिवेटेड फील होता है. तो ये हमें क्या हमारा बॉडी बताता है कि कहीं ना कहीं वो बंदे से हमें जो एनर्जी पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिलके थोड़ा नेगेटिव मिला है. Okay. So this is how unknowingly, unconsciously our Okay. body recognizes energies. Alright. So that means when you are feeling drained out, that means you should recognize कि हाँ वो person शायद negative है, and when you are feeling more energetic, you should feel that But- okay, this is a good vibe that you should पर follow. यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूँगा, नेगेटिव पॉजिटिव से भी जाए ना, अगर और प्रिसाइसली जाना है तो एनर्जी का एक लॉ है कि इट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल. Alright. तो क्यों हमको किसी को मिलने के बाद ड्रेन लगता है या किसी को मिलने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है, एंथुजियास्टिक फील करते हैं? क्योंकि जब हम किसी को मिलते हैं और हमें एंथुजियास्टिक फील होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदे के पास कहीं ना कहीं हमारे से ज़्यादा ऊर्जा था, Okay. जो उसकी वहाँ से वो एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर आया और हमें एनर्जी मिला, इसलिए हम लोग ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं उनको मिलने के बाद. अच्छा. और जिसको मिलने के बाद हमें ड्रेन फील होता है, उसका मतलब क्या है कि हमारे में से एनर्जी कहीं ना कहीं उसके वहाँ चला गया क्योंकि उसके पास कम था. अच्छा. So this is not about the good person, bad person, good aura, bad aura. As I said, energy is an energy. Neutral. Okay. Okay, there are very grosser energies, low vibrational energies, but to be very honest, ऐसा किसी को बोल देना कि वो bad है या good है, तो that is I think Okay. against humanity, Ah. right? So you can take it as a energy travel from me to that person, or whether I receive energy from that Correct, person. correct. That's it. Correct. ओके सर, जैसे आपने अभी ऑरा के बारे में बात किया कि उसके ऑरा, सो क्या ऑरा डिफरेंट है एनर्जीज से? ओके. ये जो ऑरा शब्द है इसका मूलभूत शब्द है वो क्या है? प्राणमय शरीर, संस्कृत में. अच्छा. तो संस्कृत में उसको प्राणमय शरीर बोला गया है, हिंदी में उसको ऊर्जा शरीर बोला गया है, अंग्रेजी में आते आते वो ऑरा हो गया, और जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इसको बायोप्लाज्मिक बॉडी बोलते हैं. सो ये जस्ट एक नाम है, बट ऑरा जो है, ऊर्जा शरीर है, वो ऊर्जा से ही बना हुआ है. ऑलराइट. ओके सर, सपोज हम ऐसा बोले कि मेरा बेसिक नेचर ऐसा है कि मैं हर एक चीज़ नेगेटिवली लेती हूँ या मुझे एंजाइटी होती है हर एक चीज़ से. सो व्हाट डू यू फील कि जो ये एनर्जी हीलिंग है, क्या ये मेरा बेसिक नेचर ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकता है? Answer is yes, 100%. Okay. Why we incarnated? The answer is here because we all are here to evolve, to grow, right? So कहीं ना कहीं हमारा जन्म का मकसद ये है कि हमको यहाँ आके हमारा उद्धार करना है, इवॉल्व होना है, डेवलप होना है, अपग्रेड करना है. तो ऊर्जा के माध्यम से हम खुद को, हमारे विचार, हमारे भावना, किसी और के भी विचार भावना, उसकी पर्सनालिटी को भी हम कहीं ना कहीं कुछ स्तर तक ठीक कर सकते हैं. और वो कुछ स्तर जो है वो मेरे हिसाब से 80% हम लोग चेंज कर सकते हैं. 20% इज रेस्ट ऑन द पर्सन्स इंडिविजुअल कर्मा. ओके. जैसे आपने अभी जैसे बताया कि इंडिविजुअलिटी हम चेंज कर सकते हैं 80% तक. Yes. तो अगर मैं नेगेटिव हूँ या मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, तो अगर मैं ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर लेना चाहती हूँ, सो बीइंग
पर्सन हु इज ऑलवेज हैविंग नेगेटिव थॉट, ये कितना तक, कितनी हद तक ये मुझे बेनिफिट कर सकता है एक्चुअली? अगर आप ध्यान करते हो हम्म। और जो ये एनर्जी लिंक साइंस है, या इसको आप प्राणा से उपचार करने का विज्ञान बोलो, पद्धति बोलो, तो अगर ऐसा कोई स्पिरिचुअल टूल आपके हाथ में है, तो मुझे लगता है कि अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, जी, आप फुल्ली कमिटेड हो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तो 100% इट इज पॉसिबल कि हम हमारा उद्धार कर सकते हैं और कंप्लीट नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी की तरफ आगे जा सकते हैं. So viewers, those who are suffering from anxiety, those who are having negative thoughts and negative issues, I think there is nothing that can stop healing you from being connected with the positive energy. So stay positive, viewers. सर, जैसे हमने देखा है कि मैं अगर एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, और हमने बहुत सारे मीडिया वगैरह सब जगह हमने देखा है कि देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिव स्प्रेड अबाउट नेगेटिव एनर्जीज, जैसे वशीकरण है या किसी को किसी से सेपरेट करना है, सो पीपल डू दैट. सो अगर मैं एज अ पॉजिटिव व्यूअर हूँ और अगर मैं ये एनर्जीज के बारे में जानती हूँ, तो कहीं कहीं मेरे मन में ये शंका होती है कि क्या ये नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज पे हावी होती है? नहीं, अगर मुझे पूछो तो कभी नहीं. अगर हम हिस्ट्री खोल के भी देखें तो हाँ, टाइम बीइंग तकलीफ हुआ है, जो सही रास्ते पे चले हैं, पॉजिटिव एनर्जी को लेके चले हैं, उनको स्ट्रगल्स आए, चैलेंजेस फेस किए होंगे, बट एट द एंड पॉजिटिव एनर्जी ही ओवर रूल करती है नेगेटिव एनर्जी को. नेगेटिव एनर्जी कभी भी पॉजिटिव एनर्जी को ओवर रूल नहीं कर सकती. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ लॉर्ड रामा. राम भगवान भी सच का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट? पॉजिटिव एनर्जी को साथ चलने वाले. तो उनको भी वनवास हुआ, 14 साल तकलीफ हुई. समझ सकते हैं कि भाई वन में गए तो कंकर भी लगे होंगे, कांटे लगे होंगे, खाना नहीं मिला होगा, एनिमल्स है, बहुत सारी उनको भी तकलीफ हुई होगी. युद्ध हुआ, सीता माता का हरण हुआ, बट एट द एंड क्या हुआ? विजय प्राप्त. यस. तो पॉजिटिव एनर्जी को कभी भी नेगेटिव एनर्जी ओवररूल नहीं कर सकती. यस, एक चीज यहाँ पर और कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी भी है, और ऐसा नहीं कि नेगेटिव एनर्जी नहीं है. एज लॉर्ड कृष्णा सेड इन गीता कि नो वन इज अ कंप्लीटली अ गुड और बैड. A good person is not completely a good, and the bad person is not completely a bad. You know, we all are evolving. So in evolution, you know, mistakes happen. हो सकता है. गलत चीजें, सही चीजें करते 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 कभी ना कभी हम परफेक्शन के ऊपर पहुंचना है. बट हमारे अंदर भी नेगेटिव एनर्जी है, तो हमें उसको भी निकालना जरूरी है. और सामने से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो वो आपको कभी भी ओवररूल नहीं करेगी. और अगर हमें कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि कहीं से भी मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही है जिसके कारण से मेरी लाइफ में बाधाएं आ रही है, तो इसका दो सॉल्यूशन है. एक तो आप अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि कोई चाहे कितना भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डालने का प्रयत्न करे, आपको हैरान करने का, तो आप हैरान ना हो. दूसरी चीज, there is a in quantum physics there is a law of attraction. Like attracts like, dislike repels. अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तभी ही कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक कर सकती है. So if you don't have a negative energy, you are not going to attract the negative energy, right? So अपने अंदर से पहले शुद्धिकरण कर लो. जो भी नकारात्मक विचार भावनाएं आपने पकड़ के रखे हैं या आपकी कॉन्शियसनेस में जिसके ऊपर अभी आपका ध्यान नहीं गया है, तो आप इंट्रोस्पेक्शन करके उसको निकालो, तो आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक नहीं होगा. नेगेटिव एनर्जी आपको हैरान नहीं करेगी. दूसरा, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग. इसको हम एग्जांपल ले तो ऐसे ले सकते हैं कि अगर ये क्लिनिक है समझो, इसका डोर नहीं है, इसका विंडो नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? बाहर से गंदगी अंदर आएगी और अंदर से कुछ भी बाहर जा सकता है. करेक्ट. सेम वे अगर यहाँ डोर और विंडो रख दो तो कोई अंदर नहीं आ सकता. यू आर सेफ प्रोटेक्टेड. सेम वे हमारी ऑरा में भी जो अगर होल्स एंड क्रैक्स हो गए, तो क्या होगा? कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ सकती है और हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी बाहर जा सकती है. ये होल्स एंड क्रैक्स क्यों होते हैं?
Now the question, हाँ. because of our anger and fear. All right. So if you work on both these weaknesses and remove these weaknesses, then you not need to worry about negative. Alright. So, सर, क्या ये हीलिंग जो प्रोसेस है, एनर्जी हीलिंग प्रोसेस है, जैसे आपने कहा कि हमारी ऑरा ही हम इतनी मजबूत कर दें कि बाहर का कोई भी चीज़ हमको इफेक्ट ही नहीं कर पाए. सो इज दिस हीलिंग एनर्जीज हेल्प अस समवेयर टू स्ट्रेंथन आवर ऑरा? Of course, 100%. इसके लिए कोई कोर्सेज अवेलेबल है? इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज है. द इनर साइंसेज एंड स्टडीज फाउंडेशन करके हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है और इसके अंदर 40 कोर्सेज है. ऑलराइट. यस, तो ये सभी के सभी 40 कोर्सेज में हम यही सब सिखाते हैं स्पिरिचुअल कोर्सेज में कि कैसे हमारे ऑरा चक्र को हम स्ट्रेंथन करें, अपग्रेड करें. ये तो एक पार्ट हुआ हमारी लाइफ का कि हमें फियर से निकलना है, ये जो नेगेटिव एनर्जी का है. बट बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट है लाइफ के, जैसे कि करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, ओके, मेंटल एंड इमोशनल पीस एंड हेल्थ. ओके. तो वो सब चीज़ों को भी लाइफ में कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे कैसे हार्मोनियस बनाना है. यू नो, दे आर लाइक फोर व्हील ऑफ आवर व्हीकल. If a single vehicle have not in alignment, then the car will not reach to the destination. Same way in our life, if these four wheels are in not alignment, we will not reach to the soul enlightenment. सो व्यूअर्स, जैसे सर ने बताया कि एनर्जी हीलिंग है वो एक ही क्षेत्र में लिमिटेड नहीं है. इट कैन अप्लाई इन ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एलिमेंट्स टू योर फाइनेंसेस टू योर रिलेशनशिप्स एंड लॉट मोर थिंग. सो आई थिंक सबको ये चीज़ करनी चाहिए. 100%. तो क्या एज ग्रुप है सर? व्हाट एज ग्रुप विल यू से कि यही एज ग्रुप को लर्न करना चाहिए या ये कुछ ग्रुप को नहीं लर्न करना चाहिए? See, spiritual courses is equal to a truth, Okay. reality, Okay. right? So to know the truth, to know the reality, there is no age barrier. All right. But yes, according to our experiences, All right. 16 साल के ऊपर के बच्चे से लेके हर कोई spiritual courses कर सकता है. All right. Okay. So I think everybody should start taking up this course at earliest as possible. ऑलराइट. सर, दूसरा हमने जैसे बात की, मैंने काफ़ी बार आपसे ये चीज़ सुनी है कि आप बहुत बार फॉरगिवनेस के बारे में बोलते हो कि फॉरगिव करो, लेट गो करो, फॉरगिव करो. सो फॉरगिव करना और लेट गो करना कितना कोरिलेट करता है एनर्जी से? ओके, ये जो हमारे थॉट्स है, इमोशंस है, रिवेंज के, देन यू नो बदला लेने का, ग्रजेस होल्ड करना, तो ये सारे जो थॉट्स है उसकी जो एनर्जीज है, वो साइकिक इंप्रेशन जो है वो हमारे हर एक सेल्स में जाके बैठ जाती है. अच्छा. ठीक. और जैसे ही वो एनर्जीज हमारे सेल्स में जाती है तो सेल्स का जो ऑटोमेटिकली हार्मोनियस वर्क करने का जो उसका सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब होता है. और सेल्स अंदर ही अंदर डिसहार्मनी क्रिएट करते हैं एक दूसरे सेल के साथ. और इसी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करके जो डिसीज है, जो बीमारी है, वो लोगों में होती है. क्यों? क्योंकि वो लोग दूसरों को माफ नहीं करते. इसलिए उनके सेल्स क्या सीखते हैं कि हमें भी दूसरे सेल्स को माफ नहीं करना है. तो वो डिसहार्मनी क्रिएट होता है और ये बीमारी लोगों को होती है. तो पहले तो ये समझना है कि फॉरगिव इसलिए करना है क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, भौतिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से. दूसरी चीज, जब आप किसी को माफ नहीं करते हो, इट मींस यू टाइड योरसेल्फ विद दैट पर्सन, यू एंटेंगल विद दैट पर्सन, राइट? आपका मन, आपका भाव, हर एक चीज, एक एक सेल्स है, उसका एनर्जी जो है वो उसमें ही लग जाता है कि मैं कैसे उससे बदला लूं. सो इट इज लाइक यू नो कि आपको कोई चीज आपके सामने रखी है, वो आपको लेना है, पर आपका पैर आपके चेयर के साथ बांध दिया है जिसके ऊपर आप बैठे हो. क्या होगा? आप वो चीज नहीं ले पाओगे क्योंकि आप बंधे हुए हो वो चेयर के साथ. तो वो जो चेयर है ना, वो आपका दुश्मन है, या तो वो बंदा है जिसने आपको पेन दिया है, दुख दिया है जी, और आप हो जो उससे बंधे हुए हो. जब आप बदले की भावना रखते हो, माफ नहीं करते. द मोमेंट यू फॉरगिव, आपकी वो जो टाइड है वो खुल जाती है
और आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। सो बेसिकली ऐसा है कि फॉरगिव करने से हमारी ही हेल्थ अच्छी होती है। सो गाइस लेट्स फॉरगिव। सर जैसे हमारे नए प्रेजेंट जनरेशन है, हमारा जो जनरेशन है टीनेजर स्पेशली, वो लोग काफ़ी एग्रेसिव है और उनको हर एक चीज़ इंस्टेंट चाहिए, ऑलराइट, इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड दे आर वेरी रेस्टलेस। सो ये एनर्जीज कहाँ तक उनको बेनिफिट करती है? देखो आज का हमारा यूथ है ना, आज का नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग our youth are very energetic. They have energies, but unfortunately उनका जो एनर्जी है ना वो scattered है, imbalance है, या तो वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। जैसे आजकल के बच्चों को देखोगे आप तो पेरेंट्स की बहुत सारी कंप्लेन है कि वो कौन सी गेम पबजी, फिर नया नया कोई भी गेम का एडिक्शन हो जाता है, टेलीविजन एडिक्शंस है, गेम्स एडिक्शंस, बाहर खेलने जाने का एडिक्शंस, ग्रुप चैट एडिक्शन, व्हाट्सएप एडिक्शन, फेसबुक इंस्टाग्राम एडिक्शंस, राइट। तो कहीं ना कहीं या तो वो लोग मिसगाइडेड है या तो मिसडायरेक्टेड है। इसका रीजन क्या है कि उनका खुद का जो इंटरनल एनर्जीज है वो बैलेंस नहीं है। हाँ, एनर्जी बैलेंस अगर होता है उनका और एक ही दिशा में अगर काम करता है तो वो लोग जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम उनकी एनर्जीज बैलेंस कर सकते हैं, उनको हेल्प हो सकता है, द आंसर इज यस। एंड एक्चुअली हमें वो करना ही चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरेंट्स कि वो ऐसे कोई भी स्पिरिचुअल कोर्सेज है, एनर्जी के वर्कशॉप से वो ले और अपने बच्चों को हेल्प करें। सो जैसे आपने बोला कि स्पिरिचुअल कोर्सेज ले, पर हमारे आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जैसे मार्केट में है कोडिंग, रोबोटिक्स, ये वो, ऑल रिलेटेड टू मैकेनिक्स एंड एवरीथिंग, द चिल्ड्रन एज वेल एज द पेरेंट्स प्रेफर दैट मोर टू द स्पिरिचुअल कोर्सेज। सो एक पीस ऑफ एडवाइस या कुछ कहना चाहते हैं इसके रिलेटेड? यहाँ पर दो चीज़ें मैं तो पेरेंट्स को पहले समझाना चाहूँगा। पहले तो आप ऐसा समझो, हम एग्जांपल लेते हैं स्टीम का। स्टीम अगर ऐसे हवा में बह रही है तो उसका ना तो कोई यूज है ना उसकी कोई कीमत करेगा, पर वही स्टीम को अगर हम इंजन के डब्बे में डाल देते हैं तो क्या करेगा, वो पूरी ट्रेन को चलाएगा और अपने डेस्टिनेशन पर तक पहुंचाएगा। सेम वे हमारे बच्चे को आप आज डालोगे, रोबोटिक्स में डाला, कल कराटे में डाला, फिर बच्चे को डांस में डाला, ये करवाया, तो आप क्या कर रहे हो, आप ही उनकी जो ब्रेन की एनर्जी ना जी उसको स्कैटर कर रहे हो। तो क्या होगा, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे आके हमसे बात करते हैं कि आप लोग बोलते हो कि आपको जो पसंद है वो करो, उसको करियर बनाओ, जो चीजें आपको पसंद है उसका ही आप अपना करियर चुनो। बहुत सारी मूवीज में भी ये सब आ गया। तो वो लोग का कंफ्यूजन अब क्या है पता है, कि हमें तो बहुत सारी चीजें पसंद है, आउट ऑफ दैट हम क्या करें। जैसे मेरा यहाँ बड़ौदा में नवरचना स्कूल में इंटरव्यू था वहाँ के बच्चों के साथ, तो मैंने ऐसा बोला कि आपको जो पसंद है, जिसमें आप माहिर हो, वो चीज़ को आप अपना करियर बनाओ, चाहे वो आपका स्पोर्ट हो या तो म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंट का कुछ हो या कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो। तो एक लड़का खड़ा होकर यही सेम चीज़ मुझे पूछी कि सर मुझे तो ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। तो मैंने बोला कि आपको जो ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा माहिर हो वो करो। तो उसने वापस मुझे ये बोला कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने सीरियस थे तो मुझे हर एक चीज में इक्वली माहिर बनाया, तो मुझे क्या करना चाहिए। सो भले आपने तो बहुत सारे प्रयत्न किए एज ए पेरेंट्स, आपने बच्चों को ये सिखाया वो सिखाया, बट एट लास्ट तो वही रहा ना कि वो कंफ्यूज ही है। सो आप हर एक जगह पे उनको डालने की बजाय कोई एक चीज में उनको ले जाओ, या you direct their energies into one direction. Okay. Right. So that's a good point. I think parents should note that. Okay. So sir, आप क्या ये मानते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो यूथ है या जो हमारे टीनेजर्स हैं, क्या वो रियलिटी में मिसगाइडेड है? बच्चे मिसगाइडेड तो है कहीं ना कहीं पे, पर गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है। अच्छा, क्या? कहीं ना कहीं ये फास्ट लाइफ,
और ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरियात हम बोलेंगे, हाँ, नहीं हाँ। कि उनका खुद का इच्छा है, पर अभी पैसे कमाना वो भगवान से, अगर भगवान के बाद अगर कोई ज़्यादा पावरफुल शक्ति है तो वो पैसा है, हम सब जान। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि बच्चों की नीड पूरी करनी है, तो वो लोग इतने बिजी हो गए कि वो लोग भी उनको समझ नहीं अच्छे से दे पा रहे हैं। तो बच्चे मिसगाइडेड तो है, पर दोष सिर्फ उनका नहीं है, दोष पेरेंट्स का भी है। और इसीलिए पेरेंट्स को ऐसे स्पिरिचुअल कोर्सेज पहले करने चाहिए बिफोर द फैमिली प्लानिंग, जिससे कि उनको पता चले कि अगर मैं कल जो बच्चा आने वाला है तो उसको कैसे ग्रो करना है और कहाँ उसको ले जाना है। ऑलराइट, ओके। दूसरी एक बात थी सर कि जैसे हमने ये एनर्जीज के बारे में लर्न किया या जो हीलिंग एनर्जीज के बारे में हमें जाना, तो कल उठ के कोई सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये जॉब है, सपोज कोई जॉब ऑफर हो रही है मुझे, आई टेक एन एग्जांपल कि कोई जॉब मुझे ऑफर हो रही है या आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, ऑलराइट, तो क्या उसमें आने वाली डिफिकल्टीज को पहले से ही मैं फोरसी कर सकती हूँ, या सपोज इन केस इफ आई एम फेसिंग एनी डिफिकल्टीज इन दैट, क्या मैं उसे ओवरकम कर सकती हूँ? दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड यस। ओके, क्यों? बिकॉज जब हम मेडिटेशंस करते हैं, ओके, ऐसी एनर्जीज रिलेटेड एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारा जो ऑरा है वो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है ना, वो भी कई बार हमें पता चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूशन। ओके, सो यस, ये बहुत ही हेल्प करता है। ओके, इवन जब आप कोर्स में आते हो तो हम वहाँ पर तो इसका पूरा एक चैप्टर लेते हैं कि कैसे एनर्जीज को फील करना है, ओके, कहाँ की एनर्जी कैसी है। जैसे आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हो तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो प्रॉपर्टी लेने के बाद दुखी होते हैं, हाँ हाँ, और कई लोग वो जगह पर जाने के बाद बहुत ऊपे जाते हैं। करेक्ट, क्यों? क्योंकि वहाँ की एनर्जी शायद पर्सन ए को माफक नहीं आई थी और पर्सन बी को माफक आई। ऑलराइट, तो हम क्लासेस में ये सब सिखाते हैं कि कैसे एनर्जीज को रिकॉग्नाइज करना है। ऑलराइट, ओके, यस, विथ एनर्जी यू कैन रिकॉग्नाइज द Alright. डिफरेंट एनर्जीज एंड ये बहुत ही हेल्प करता है आगे के डिसीजंस लेने में। ओके, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हमने सही डिसीजन लिया, बट बीच में आते आते हमें लगता है हम कि doubt ये करने मैंने लगते गलत कर हाँ, हम डाउट करने लगते दिया। हैं, और तब हमारे पास आगे जाना या पीछे आना या बीच में रहना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सो अगर ऐसा कोई नॉलेज हमारे पास है तो हम फ्यूचर प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। आपने बहुत बार बोला स्पिरिचुअल एंड एवरीथिंग कम्स आफ्टर द सुपरनैचुरल पावर, Yes. ऑलमाइटी, सो इज स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड टू द एनर्जीज? I must say, energy is a small part of spirituality. ओके, Yes. But because we are down and spirituality is up, you know, God is there and we are here. So we want to go there. So the last is the energy. If you look at from the higher view, Okay. upper angle. अच्छा, But if because we are here and we want to reach there, we have to start with the energy. So energy is the first step to reach to the last level of spirituality. That is called enlightenment. ऑलराइट, ओके। प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, everything is around pandemic right now. COVID-19 is everywhere and everybody is in a state of anxiety. So what and how have you treated this pandemic? Or how many patients have you taken up during this pandemic? With the grace of God Alright. and my patients' trust on me, we reached more than 155 patients Alright. of COVID Okay. and we treated them successfully. Oh, that's a हाँ, great achievement. और उसमें से majority, Okay. I can say 80% का जो patient, 80% जो Ratio. patient थे, वो सब 65 की एज के अब थे। Okay. और उसमें से भी अगर हम आगे डिटेल में जाएं तो उसमें से भी 50% to 60% पेशेंट को प्रीवियस हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, Okay. किडनी प्रॉब्लम्स या Okay. ब्लड प्रेशर,
तो उनका बचने का संभावना कहीं ना कहीं बहुत कम था. Okay. उनका विदाउट वेंटिलेशन उनका ऑक्सीजन 65 70 Oh, अच्छा. ऐसा था. Uh-huh. और टोटली मेडिकल डॉक्टर्स जो थे उन्होंने हम्म. होप्स छोड़ छोड़ दिए दिया था कि ये शायद ही बचेंगे. और पेशेंट्स के फैमिली ने हमें कांटेक्ट किया. वी स्टार्टेड हीलिंग. यस, बहुत टाइम देना पड़ा था. इट वाज अच्छा. एग्जॉस्टेड डेज, but yes, successfully they are all are right now healthy and at their home. So I think alternative medicines do work. And Yes. so coming back to this question, sir, जैसे आपने बताया कि आपने 150 patients successfully heal किए हैं. So do medical science recognize these alternative medicines now? When I started in 2003, हाँ. I think कोई इसको मानता नहीं था. अच्छा. इवन मेरे खुद के परिवार की बात करें तो मेरे फादर मदर, मेरे कजिन्स, मेरे फ्रेंड्स, वो Okay. सब मेरे पे हंसते थे. So that was a different time. But Okay. yes, Now is the in last 10 years, Mhm. science started to believing into this energy world, and they have given the name to this science is quantum physics. All right. And they have given new equation, Mhm. E is equal to m. Okay. Means energy is equal to matter. All right. So whatever you see, whatever you feel, whatever you touch, Mhm. these all is a different matter, Okay. and these all matters came from the energy. Okay. Lastly, sir, क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक? कैसे रहना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए पेंडेमिक टाइम पे, कैसे एंजाइटी लेवल्स को आपके लो डाउन करना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्ट अप करना चाहिए? दैट इज ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. सो पहले तो ये समझ लो कि पैंडेमिक इतना भी डेडली नहीं है. Okay. जितना होना चाहिए, जो हाँ. वर्ड पैंडेमिक बताता है ये, हाँ. क्योंकि इसका मॉर्टालिटी रेशियो 1.49 आज ही हमने पेपर में पढ़ा. Correct. और इसका रिकवरी रेट अभी इंडिया में तो 91% के ऊपर चला गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने न्यूज़पेपर वो गलत वीडियो आए थे, फेक वीडियो, वो चाइना का दिखा हाँ, रहे जी, थे जी, कि रोड पे सब मर रहे हैं. करेक्ट करेक्ट. तो मेरी एडवाइस पहले तो यही है कि कोविड के बारे में जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो टेलीविजन पे हो या न्यूज़पेपर में हो, उसको देखना बंद करो. पहली चीज. दूसरा, अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट करो, इसको आप भूल जाओ. दूसरी चीज. थर्ड, because it is related to your upper respiratory tract, do pranayam. Simple rhythmic yogic breathing will help you a lot. Right? Third, focus on your diet. Fourth, right? कि आप अच्छा खाना खाओ, जंक फूड, फास्ट फूड सब बंद करो. हो सके उतना जूसीस और फ्रूट के ऊपर ध्यान दो. तीखा, तला हुआ, स्पाइसी फूड कम करो. फिफ्थ, थोड़ा बहुत लाइट वर्कआउट करो. एक्सरसाइजेस करो. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, डू मेडिटेशन, do affirmations with certainty and strong belief that what I am affirming will tend to manifest. And smile, because when you smile your hypothalamus activate, and when this gland activate it releases the hormones which boost your immunity. So So keep smile. smiling. Yes. Okay, sir. So we'll conclude this. So to conclude, viewers will just keep some pointers. Okay. So first and foremost is energy is neutral. Alright. Yes. It does not have any negativity or any positivity. It is upon your thoughts you will make it positive or negative. Okay. Second thing is, I think sir said very beautifully, forgive. Let go everything. So it is good for your health. Third thing, eat well, sleep well, stay positive, meditate, and guys, do view us. Do keep viewing us for further videos. Keep watching us. There is our description in the description box. If any queries related to it, you can visit Dr. Rushik Thakkar. You can drop an email over there. Do subscribe the bell buttons. Do subscribe us and keep watching. Stay healthy, stay fit. Atma Namaste, sir. Thank you for being here. Thank you for inviting me here, and it is my honor to have
as maximum people as possible. So we'll be looking forward for more podcasts Yes, with you. yes, yes, 100%. Atma Namaste viewers.